My talk will simply concentrate on what child protection messages we can give and how we can empower children at different ages so that they can protect themselves. So I might be skipping a lot of slides. We cannot raise our children as our parents have raised us, because your parent raised you for a world that no longer exists. इसी तरह हजरत अली का कौल है, do not force your children to behave like you, for surely they have been created for a time which is different to yours. And we are the one, we will have to come up to the time, because the children are created for another time. Keeping that in mind, थोड़ा सा मैं तालीम और तरबिया के डिफरेंस के बारे में बताऊंगी, इससे पहले के मुख्तलिफ एजेस पे हमने क्या पेरेंटिंग मैसेजेस देने हैं. If we look at the definition of education, education is teaching our children the factual knowledge, whereas a training or tarbiya, it's an Arabic word originated from the word tarbiya, is developing is a more holistic way of training children, like developing the ethics, moral values, conversational skill, manners, teaching prayers depending upon one's religion. ये तमाम चीज़ें जो आती हैं वो तरबिया में आती हैं, और ये होलिस्टिक डेफिनेशन लेके अगर हम पेरेंटिंग को नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो वी आर गोइंग टू एंड अप अ जनरेशन विच लैक द एथिक्स and the moral values which we like to inculcate. Again, parenting is definitely a skill that has to be learned. It's not like that if you have become a parent, if you are given birth of a child, you become automatically a parent or you have learned this skill. This is a learned skill and one has to learn it. And there are a number of skill you need to become a good parent. Okay. The key towards good learning is stay communicated with the child. Talk to your child about everything, ask about everything, give a space and share a space, and let them not fear you, because this is the very reason why our children are not communicating with their parents. Either they have an authoritarian style or too authoritative, or they let them go, their children free without asking them. So the parenting style, and I'm sure in the morning session isko bahut detail mein discuss kiya gaya hoga, so I will not go into the parenting style, and I will go directly to how we can protect our children. डॉक्टर हिना ने मुख्तलिफ स्टेजेस बताए थे चाइल्ड डेवलपमेंट में. व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज एंड निग्लेक्ट, द एफर्ट हैज़ टू बी स्टार्टेड प्रायर टू प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. टू बिगिन विद, अभी वर्दी स्पीकर्स कह रही हैं कि एक एक घर में 12-12 बच्चे हैं, तो दिस हैज़ टू बी डिसाइडेड बिफोर. डू यू रियली नीड एन अनदर अनवांटेड चाइल्ड? अभी एक बच्चा चलना नहीं चाहता है, खड़ा होता है, बैठना नहीं होता है कि दूसरा बच्चा आ जाता है. एटलीस्ट यू शुड हैव एन स्पेस ऑफ 2 to 3 years बिफोर यू इवन बिगिन टू थिंक अबाउट हैविंग अनदर चाइल्ड. दिस इज़ वन थिंग वी नीड टू इनकलकेट इन टू द पेरेंट्स. को बताना पड़ेगा कि क्यों ज़रूरी है चाइल्ड स्पेसिंग. चलें, चाइल्ड फैमिली प्लानिंग इज़ अ नो वर्ड एंड उसका बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बट चाइल्ड स्पेसिंग इज़ अ वर्ड विच कैन बी एक्सेप्टेबल इन मोस्ट ऑफ द एरिया. Scientific research has shown that 5th month onward, the unborn baby is able to hear sound, become aware of motion, and possibly exhibit short-term memory. The research is going on this topic. And they become familiar with the parents' voices. And also, it is the mannerism of the talking, it's the tone of the parents' voice that has a very, very negative or a positive impact. By 7th month, external schedule cues influences the unborn baby's sleep habit. So planning to have a family, spacing between birth selection, and also the place of delivery. Whether अगर आप गांव में भी हो रहा है तो is the midwife जिसको select किया गया है, is she trained? Has she been given an information about the essence or the principle of child health? Immunization के बारे में पता है क्या? उसे child protection के बारे में बताया गया है? ये ज़रूरी. अब pregnancy में diet, because a malnourished mother give rise to a malnourished baby, and this has been a statistic. Pakistan ka low birth weight and prematurity rate is more than 20%, and this 20% of the babies go into
परमानेंट मैल न्यूट्रिशन अगर इस स्टेज पे कुछ नहीं किया जाए, एंड मैल न्यूट्रिशन लीड टू शॉर्ट स्टेचर, और यही वजह है कि 40% बच्चे जो हमारी पॉपुलेशन के हैं वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, उसमें 10%, कंसीडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर बिलोंगिंग टू द पीडियाट्रिक एज, यू कैन वेल इमेजिन कि 40% कितना बड़ा मैल न्यूट्रिशन रेट है. So some key advice at this stage to parents are कि ask the obstetrician about the frequency and timing of their visit, who covers for them when they are not available. जो शहरों में रहते हैं उनको ज़रूर मालूम होना चाहिए, जो गांव में रहते हैं उनको इतना पता होना चाहिए कि जो मिडवाइफ या दाई आ रही है क्या उसको ट्रेनिंग मिली है इन सेफ डिलीवरी केयर. इसी तरह prepare the mother for breastfeeding beforehand so that once the baby is delivered, she knows what is the requirement of breastfeeding, how frequently it has to be given, and immunization another. Whereas immunization, Pakistan, despite the fact it is freely available through EPI, लेकिन पाकिस्तान में overall 60 to 70% ज़्यादा immunization rate है. So these are the birth right of every children. जहाँ पे birth right violate हो रहा है वो बच्चा neglect हो रहा है या abuse का शिकार हो रहा है. अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूनेट्स एंड इन्फेंट्स से. हिना ने डिफरेंट स्टेजेस बताए थे कि इन्फेंट्स एंड न्यूनेट्स में हम क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन मैसेजेस दे रहे हैं. ऑफ कोर्स दे रिक्वायर ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज दैट इज द फर्स्ट इम्यूनाइजेशन दैट हैज टू. दोज हु आर डिनाइड ब्रेस्ट फीडिंग आर एक्चुअली द नेग्लेक्टेड चाइल्ड. इम्यूनाइजेशन इज अनदर necessary requirement for that, and their basic need is cuddling and caressing. They communicate by cry, learn to listen to the child. एक बहुत अच्छी मैंने वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने डिफरेंट क्राई ऑफ द बेबी से एंटिसिपेट किया था कि ये हंगर का क्राई है या डायपर चेंज करने का क्राई है. तो मे बी वी नीड टू हैव मोर एंड मोर सच रिसर्च एंड वी शुड हैव प्रमोशनल वीडियोज लाइक दिस. At this stage, up to 2 years of age, the entire responsibility lies with the parents to protect these children. Forming attachment is the foundation of the infant's and child capacity to form and conduct relationship throughout life. Be alert to the unexplained change of behavior of small children, especially अगर आप अपने बच्चों को, बेबीज को इस स्टेज में किसी डे केयर नर्सरी में रख रहे हैं तो make frequent attack, unannounced visit to the daycare nursery if babies are kept there for some time, and any change in the behavior, whether it is an excessive crying, this might be because of the shaky baby syndrome, या any abuse, signs of abuse, that has to be checked for immediately. और उसका बेस्ट तरीका है कि unannounced visit करते रहें and keep a check on what is going on there. Birth registration is every birthright. Every baby born whether in the village or in a city has to be registered क्योंकि यहाँ से उसकी identity मिलती है apart from data keeping and whatever. And of course, frequent medical checkup is very essential to monitor the growth and development of the baby. अब अगर हम आगे चलते हैं 1 to 3 years of age, अब क्या चेंजेस आ रहे हैं बच्चों में, उसी के हिसाब से आपने एज अप्रोप्रिएट मैसेजेस सेल्फ प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट के देने हैं. इस स्टेज में 1 to 3 years है, ये ज़्यादा एक्टिव है. आई ऑलवेज कॉल देम चिल्ड्रन एट दिस इज ईयर एज यंग एक्सप्लोरर. कोलंबस की तरह वो हर ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे एक कोई भी सेंसिबल बंदा नहीं जाएगा. ठीक है. सो दे आर चैलेंज, दे आर लर्निंग टू लर्न वर्ल्ड थ्रू देयर ओन सिस्टम. दे बिगिन टू अंडरस्टैंड सोशल एटिकेट सच एज बीइंग पोलाइट एंड taking turns in there. They need to help to explore the world around them and eager to explore them, and they knew how to explore it because they started walking. इनके टेम्पर टेंट्रम्स डेवलप्ड होते हैं, जिद आ जाती है, रोना आ जाता है. ये तमाम चीज़ों के फेमिलियर होना पड़ता है पेरेंट्स को, स्पेशली द न्यू पेरेंट्स जिनको नई नई पेरेंटहुड मिली हुई है. वन हैज़ टू टेल देम कि ये तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं बेबी के डेवलपमेंट में. सो दे नीड टू बी केयरफुल when reacting to such behaviors. Giving threats or punishment is not an answer to the temper tantrum at this stage. Help, guide and teach the child establish basic routine. इसमें आपका washing of the hands आ जाता है, toilet training आता है, table training इस stage पे आप शुरू कर सकते हैं. ठीक है. मूड डेवलपमेंट इसमें बिगिन रखता है, एंड एटलीस्ट इस स्टेज पे बेबी का इतना एथिक्स डेवलप्ड हो जाता है कि उसे पता है कि क्या चीज़ पेरेंट्स को अच्छी लग रही है, क्या नहीं लग रही है. These children need help to build their vocabulary. So talk to them, communicate them. जितना आप communicate करेंगे उनकी vocabulary develop होगी. जब vocabulary develop होगी तो उनकी communication आसान हो जाएगी. They begin to understand social etiquette such as being polite,
नीड टू हेल्प भी एक्सप्लोर, ये मेरा ख्याल हो चुका है, मैं आगे चलती हूँ, सॉरी. दिस इज ऑल्सो द टाइम दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट अबाउट पर्सनल सेफ्टी. इस स्टेज पे क्या हो रहा है, टीच द प्रॉपर नेम्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हम अपने इस इसमें बच्चों को बताते हैं, दिस इज योर नोजी, दिस इज योर आई, टेल देम दैट दिस इज योर प्राइवेट पार्ट, डू नॉट लेट एनीवन touch this part, only your mama can touch it, only your baba can touch it, because these children are very sensitive to good touch and bad touch. Instruct children not to allow anyone to touch them, and you can have, there are videos available which can be shown to them कि once this is a no part, you don't have to. बच्चे के लेवल पे जाके उनके जहनी सलाहियतों को देखते हुए आप टॉडलर स्टेज से चाइल्ड प्रोटेक्शन मैसेजेस देना शुरू करें, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट गुड टचेज एंड बैड टचेज, एंड दे नो व्हेन अ चाइल्ड इज बीइंग टच्ड with love and with politeness, and when the child is indecently touched. हम आगे चलते हैं 3 to 5 years पे. अभी प्री स्कूल ईयर है, आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 2.5-3 साल से चले जाते हैं स्कूल में. यहाँ ज़रा सी मेमोरी इम्प्रूव्ड होना शुरू हो रही है, थोड़ी सी फैंटेसी थिंकिंग भी होती है. अक्सर पेरेंट्स समझते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, विच इज़ नॉट अ झूठ, वो इनकी एक तरह का फैंसी थिंकिंग आ जाती है. दिस इज and they try to build up stories on their own. The child at this stage needs you more than anybody. You are a role model for him. This is the stage जहाँ आप अपने आप को as a role model follow कर सकते हैं. They expect the pampering you showed them. अब अगर यहाँ पे कोई दूसरा सिब आ गया तो सिबलिंग रिवेलरी शुरू हो जाती है, एंड पेरेंट्स नीड टू बी वेरी वेरी ट्रैक्टफुल एट दिस स्टेज, बिकॉज अगर यहाँ पे निगलेक्ट किया तो वो दे लूज सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आगे चल के उनके लिए बहुत में पेरेंट्स खुद क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, दे आर ऑक्यूपाइड आफ्टर अराइवल ऑफ द न्यू, दे ऑफन मिसअंडरस्टूड द बेबीज टेंट्रम एट दिस स्टेज बिकॉज दे ट्राई टू गेन द अटेंशन. वही अटेंशन चाहते हैं जब वो सोल आई ऑफ द पेरेंट्स था, और अब एक उसका राइवल पैदा हो गया है. अब इस स्टेज पे हम क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन मैसेजेस करते हैं? These children should never be left alone. एक तो ये कि they are very prone to injury, especially outside home and crowded places like parks and shopping center. मैंने अक्सर पेरेंट्स को शॉपिंग सेंटर में देखा है, वो शॉपिंग में लग जाते हैं, वो छोटा सा उनका बच्चा है, चलते चलते किसी और जगह चला जाता है. तो one has to be very wary. It is better not to take these play children to crowd, and if the children have been taken to places like park etc., strict vigilance has to be kept. Check out your domestic helper. This is very, very important. Do not leave your children at the mercy of your domestic helpers. Keep an eye on domestic helpers. अगर आपने रखा भी है तो उनके ऊपर आप नज़र रखिए. Make unscheduled visit to your home if you are a working parents, चाहे वो आप विलेज में काम कर रहे हैं या सिटीज़ में कर रहे हैं. अनशेड्यूल्ड विजिट्स ज़रूर है, और इसमें टर्न लिया जा सकता है. फादर एंड मदर अगर दोनों वर्किंग के तो दोनों टर्न ले लें, तो उससे ये होगा कि कम से कम आप स्पॉट चेक कर सकते हैं, और रंगे हाथों पर अगर विलेज में आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी रख सकते हैं. बट अगेन बी अलर्ट टू द चेंज ऑफ बिहेवियर, क्योंकि दीज चिल्ड्रन डू नॉट नो वट अब्यूज इज, एंड दे कैन नॉट कम्युनिकेट इन द राइट वर्ड टू देम दैट समबडी हैज अब्यूज्ड देम. ओके, एट दिस स्टेज मैस्टरबेशन इज क्वाइट नॉर्मल. तो अगर वो अपना जेनिटेलिया कुछ टच कर रहे हैं तो दैट इज नॉट, बट वन हैज़ टू नो दैट दिस इज अ नॉर्मल टचिंग ऑफ द जेनिटेलिया और एबनॉर्मल टचिंग ऑफ द डेली. अब हम स्कूल गोइंग बच्चों की तरफ आते हैं. यहाँ अब ज़्यादा इंडिपेंडेंस शुरू हो गया है, फ्रेंडशिप इनकी शुरू हो गई है. दे आर एबल टू आर्ग्यू विथ हिम, रीज़न आउट करना शुरू कर देते हैं. इनका डिमांड डिफरेंट टाइप का होता है, एंड पेरेंट्स कैन असिस्ट their children by encouraging social interaction and modeling proper social behavior. यहाँ बहुत ज़रूरी है किस तरह ग्रीट करना है, किस तरह बैठना है, कहीं जाते हैं उसमें क्या चीज़ें होती हैं. पेरेंट्स को देख के चिल्ड्रन इस स्टेज पे सीखना शुरू करते हैं. You can involve them in activities and different household duties, simple household duties like putting things from one place to another, so that उनके अंदर social and responsibilities भी आए. और यहाँ gender discrimination नहीं होना चाहिए कि बेटी पे तो आपने बोझ डाल दिया कि आगे चल के इसने घर संभालना है और बेटे पे नहीं. वो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि लोग कहते हैं मर्द या बच्चा लड़का रोता नहीं है, उसको ये कहो कि लड़का रुलाता नहीं है किसी को. यहाँ से आप रिस्पेक्ट शुरू करेंगे तो आगे चल के वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा. ओके, टाइम इज आई थिंक. जॉइन इन चिल्ड्रन डेवलपमेंट. एक इस स्टेज में आप क्या कर सकते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से? आई एम कम टू द चाइल्ड प्रोटेक्शन मैसेजेस डायरेक्टली. This is the age when parents can talk to their children about self-protection and where are the places they should avoid going.
कीप अ विजिलेंट वॉच ओवर चिल्ड्रंस अदर एक्टिविटीज़, और उनके दोस्तों पे भी आप नज़र रखें, क्योंकि अभी स्कूल गोइंग के बाद वो बच्चे एडोलसेंट में एंटर होते हैं। कोशिश करें कि बच्चों के फ्रेंड्स हैं उनकी फैमिली से मिलें, उनको अपने घर इनवाइट करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस टाइप की फैमिली है और किस तरह के उनके सोशल नॉर्म्स हैं अपने घर में। एंड कीप एन आई ऑन द विजिटर और दोज फैमिली मेम्बर। और यहाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा कहीं जाने से इनकार कर रहा है, किसी पर्टिकुलर शख्स से मन कर, कि अंडरस्टैंड द नो ऑफ अ चाइल्ड एट दिस स्टेज। रादर ये कहना कि नहीं बच्चा बुरा बात है, इस तरह नहीं बिहेव करते, उसके नो को समझने की कोशिश करें। हम एडोलसेंस पे आते हैं बिफोर वी फिनिश इट अप। एडोलसेंस 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। एक तो अर्ली एडोलसेंस है 10 to 15 ईयर्स ऑफ एज, एंड एक लेट है 16 to 20 ईयर। और अगर आप इन तमाम पीरियड को देखें तो पाकिस्तान की 60 to 70% पॉपुलेशन अप टू 21 ईयर्स ऑफ एज है, यानी हम वी आर अ यंग पॉपुलेशन। हमारे यहाँ ओल्ड पॉपुलेशन कम है, बट ये इस ट्रेजर को हम फ़ायदा नहीं उठा रहे। These children are beginning to form their identity and are testing and developing their interpersonal and occupational roles. Therefore, it is important कि do not treat them as a young adult. आप अपने 4 साल के बच्चे को जिस तरह ट्रीट करते हैं, 40 साल के या 20 years के बच्चे को उस तरह नहीं ट्रीट करते. You have to give them their due respect. Although adolescents look to peers and adults outside the family for guidance and models for how to behave, parents remain influential in their development. इस स्टेज पे पेरेंट्स को एक बैरियर रखते हुए उनके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहिए। इतने ज़्यादा भी आप फ्री ना हो जाएं कि वो फिर आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दें, और इतने भी आप स्ट्रिक्ट ना हो कि वो आपसे कम्युनिकेट ना कर सके। It's an age of high risk. Newfound freedom can result in decision. बच्चे जो अभी पहले बात कर रहे थे साइबर बुलिंग की और चाइल्ड अब्यूज़ ऑन डिजिटल एरा, हमारे जो ये बच्चे हैं ये बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं और बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। अनलाइक अस, हमने बड़ा टाइम लिया सीखने में। तो दिस इज़ द टाइम कि आप खुद भी सीखें कि डिजिटल एरा में क्या नया चीज़ हो रहा है, और कीप एन आई ऑन द चिल्ड्रन व्हेन स्पेशली व्हेन दे आर ऑन द नेट एंड व्हेन दे आर मेकिंग फ्रेंड्स ऑन नेट। फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, मेंटल चेंजेस आ रहे होते हैं। द पेरेंट हैज़ टू कीप देमसेल्फ अवेयर ऑफ इट। Parental issue at this stage of parenting include dealing with rebellious teenagers. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं आगे ज़रा जल्दी चल जाती हूँ, कि एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप इनके साथ करें एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम, विच इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन कीपिंग देम इनसाइड मोस्ट ऑफ द टाइम। कल ये बच्चे आगे चल के भाग दौड़ संभालेंगे और आप शायद ना हो, तो उनको इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट बनाने का ये है। लिसन टू देम, टॉक टू देम, ताकि ट्रस्टिंग रिलेशनशिप हो जाए। यहाँ पे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन मैसेजेस बिफोर आई वाइंड अप इज, दिस इज ऑल्सो द स्टेज व्हेन एडोलसेंट शुड बी वार्न्ड अबाउट द डार्क साइड ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम सो ग्लैड ये बच्चे जो अभी हमारा टी से पहले कर रहे थे कि दे आर क्वाइट अवेयर ऑफ द डार्क साइड ऑफ द टेक्नोलॉजी। मैसेजिंग, चैटिंग, साइबर बुलिंग, ये तमाम चीज़ों से हमारे बच्चों को बताने की ज़रूरत है। एंड फाइनली एडल्टहुड तक आपकी पेरेंटिंग चलती है, इसलिए कि at one stage these children begin to have a more stable relationship, और किसी ना किसी स्टेज पे ये वो बच्चे हैं जो कल आपका ख्याल रखेंगे। So thank you very much for your patient listening and sorry if I have overstepped time.